Yes, a shorthand property is a CSS property. ठीक है, CSS shorthand property. What is a CSS shorthand property? A shorthand property is a CSS property which allows you to set the value of multiple properties in one single property. हाँ, मतलब एक प्रॉपर्टी में CSS का एक प्रॉपर्टी में दो तीन रिलेटेड प्रॉपर्टीज का वैल्यू दे सकते हो जस्ट वन प्रॉपर्टी में. ओके, in one single property itself you can specify the value of multiple properties. So let us see what we mean. Let me copy and paste this one. Shorthand properties. There is nothing to memorize here, but there is something to understand. That you should know. Okay. Let me remove this script part because we won't be writing any JavaScript. So now look, display में हम लोग का suppose मैं कुछ height or width here. Let me write something. Hello world display. So here I will use the ID selector in our style tag. So here I will write say width तुम्हारा हो गया 300 pixel, height भी तुम्हारा हो गया 200 pixel suppose, and background color is red, color is white. Now when we open this Google Chrome, so this one font size we can increase, the font size is too small. Font hyphen size we can say in pixels 30 pixels, so the font size is larger now. Now shorthand property, what I said, it is a single CSS property which allows you to set the value of multiple properties, okay, at once. तो अगर हम लोग कुछ padding डालेंगे here, padding 30 pixels, तो padding all sides आ जाता है, ठीक है. Whenever you give padding 30 pixels, do you know what happens behind the scene? Padding left, ये चारों property set हो जाता है. Padding left 30 pixel, padding right 30 pixel, padding top 30 pixel, okay, padding bottom 30 pixel, okay. So all these four properties are set just by using this single property. So this is a shorthand CSS property, okay. This is a shorthand CSS property because this property is allowing us to set the value of multiple related properties. जैसे padding का related properties हो गया padding left, padding right, padding top, padding bottom. Actually these are the actual properties that we are setting, and this is a shorthand property. तो एक ही property use करके हम लोग ये चारों का value set कर सकते हैं, ठीक है. तो it's one of the examples of shorthand properties. Now it has different formats, ठीक है. It can have different formats. देखो पहले ये तो थोड़ा समझ गए व्हाट इज शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी. मार्जिन में भी यूज होता है, फिर बॉर्डर रेडियस में भी हम लोग का था ना, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस. सो ओनली बॉर्डर रेडियस देने से क्या होता है, ऑल साइड्स हो जाता है ना. सो इट्स ऑल्सो वन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बिकॉज यूजिंग जस्ट वन प्रॉपर्टी वी आर एबल टू स्पेसिफाई द वैल्यूज फॉर द मल्टीपल प्रॉपर्टीज. तो ये तो डेफिनेशन तो समझ में आया ना about this shorthand property. Baraja, your voice is breaking. Okay. So ये समझ में आया कि नहीं, मतलब shorthand property. Like you are saying कि things like padding, margin, जिससे हम लोग दूसरे दूसरे एरियाज पे उसी का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लगा के वो कर सकते हैं. यस यस हाँ. तो ये पेडिंग हम लोग का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गया बिकॉज एक ही प्रॉपर्टी से हम लोग ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का वैल्यू को इफेक्ट कर पा रहे हैं. वी आर एबल टू set the values for multiple properties using just one single property. So it is called shorthand properties. It's a shorthand property. अभी उसका फॉर्मेट रहता है, अलग अलग फॉर्मेट रहता है. देखो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जिस जिसका डिमेंशन में यूज होता है. जैसे एजेस में होता है ना, एजेस और कॉर्नर्स में. फॉर एजेस वी हैव बॉर्डर, ये देखो बॉर्डर का होता है एजेस में, राइट. बॉर्डर हम लोग का टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ऐसा एजेस में होता है बॉर्डर. फिर हम लोग का मार्जिन पैडिंग ये भी एजेस में होता है ना, मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन बॉटम, राइट. ये भी एजेस का है. सिमिलरली बॉर्डर टॉप बॉर्डर लेफ्ट पैडिंग टॉप पैडिंग लेफ्ट. सो प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू एजेस ऑफ अ बॉक्स. सो उसके लिए 3 वैल्यू सिंटेक्स पॉसिबल है. हाँ सॉरी 4 वैल्यू सिंटेक्स इज पॉसिबल. लेट मी एक्सप्लेन. इफ यू गिव जस्ट वन वैल्यू, जैसे इफ यू गिव जस्ट वन वैल्यू तो हर साइड ऑल द साइड्स विल यूज दिस वैल्यू. हाँ सपोज मैंने मार्जिन दिया पैडिंग दिया है 30 पिक्सल, तो सब चारों का वैल्यूज हो जाएगा पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 30 30 30 30 सब हो जाएगा. ओके इफ यू जस्ट स्पेसिफाई वन वैल्यू. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके दिस इज इंपॉर्टेंट. पैडिंग मैंने 30 पिक्सल दिया मतलब
इट्स एन एज प्रॉपर्टी. ओके, इट्स एन एज प्रॉपर्टी बिकॉज ये एजेस में काम करते हैं. मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, वो सब दे आर फॉर एजेस, नॉट कॉर्नर्स. हाँ, कॉर्नर्स में हम लोग का काम करता है बॉर्डर रेडियस. तो एजेस का प्रॉपर्टी हम लोग का है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर. सो दिस एज काइंड ऑफ रिलेटेड प्रॉपर्टीज में whenever you specify only one single value, this single value represents all the edges. हाँ, so if I give padding 30 पिक्सल, तो क्या होगा, all साइड हम लोग का 30 पिक्सल का पैडिंग आएगा. ठीक है. Now we have two value syntax. Instead of one value, you can specify two values. I can give like this: 30 pixel, 15 pixel. This is different format. Okay, this is different format. We can also specify two values by separating them with a space. When you specify two values, तो क्या होता है, पहले टॉप वाला होता है, फिर बॉटम, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन पहले होता है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होगा. ओके, मतलब द टॉप डायरेक्शन. सी whenever we use the two value syntax, इसमें क्या लिखा है, the first value represents the vertical, that is top and bottom edges, and the second value represents the horizontal ones, basically left and right. Okay, इसमें देखो टू टू दिया है ना. इस डायग्राम को एक्सप्लेन समझने को ट्राई करो. when we give just one value, it means all the values. Okay, all the directions. whenever we give two values, it means first the vertical direction, basically 1 1 बोल के represent किया है, and the second value represents the value for the horizontal direction, basically left and right. तो अगर मैं दूंगा पैडिंग कॉलन 30 पिक्सल और स्पेस 5 पिक्सल, मतलब मुझे समझाएगा कि इन द वर्टिकल डायरेक्शन वी विल गेट पैडिंग ऑफ 30 पिक्सल्स, मतलब पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम क्या होगा, 30 पिक्सल होगा. एंड 5 पिक्सल जो मैंने सेकंड स्पेसिफाई किया है, इट मींस द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच इज पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट, हम लोग का क्या होगा, 5 पिक्सल होगा. ओके, व्हेन आई रीलोड, यू कैन सी पैडिंग टॉप में हम लोग का ज्यादा आ रहा है, राइट. पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम में हम लोग का क्या आ रहा है. लेट मी रिमूव द हाइट एंड विड्थ. तो देखो, अच्छा इसको मैं इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, so that it takes only sufficient amount of width that's required. तो देखो पैडिंग टॉप एंड बॉटम में कितना आ रहा है हम लोग का, 30 पिक्सल आ रहा है. एंड लेफ्ट एंड राइट में सपोज मैंने 10 पिक्सल दिया है, तो पैडिंग लेफ्ट एंड राइट हम लोग का 10 पिक्सल आ रहा है. ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन, दिस वन. ये थोड़ा ये समझ में आया ना, दो वैल्यूज देने से क्या होता है. दिस अप्लाइज टू मार्जिन एंड ऑल्सो अदर एज रिलेटेड प्रॉपर्टीज. Yes. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू अदर एज प्रॉपर्टीज लाइक बॉर्डर. जैसे बॉर्डर का टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट होता है ना, सिमिलरली मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट. सो दिस काइंड ऑफ एज रिलेटेड प्रॉपर्टी. नाउ देयर इज थ्री वैल्यू सिंटेक्स. तीन वैल्यू देने से क्या होगा, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई थ्री वैल्यूज. 10 30 पिक्सल, 10 पिक्सल, मैंने थर्ड स्पेसिफाई किया 15 पिक्सल. व्हेनेवर यू स्पेसिफाई दिस काइंड ऑफ थ्री वैल्यूज टू एन एज प्रॉपर्टी, तो डायग्राम को देखो केयरफुली. 1 2 3, पहले ऊपर वाला होगा टॉप डायरेक्शन, देन तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन सेकंड वाला लेगा, देन थर्ड डायरेक्शन नीचे वाला. ठीक है, बेसिकली फर्स्ट वाला हो गया ऊपर का, फिर बीच का जो है दिस मिडिल वन, दिस विल रिप्रेजेंट द लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब. और लास्ट वाला तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा बॉटम डायरेक्शन. सो टॉप डायरेक्शन एंड बॉटम डायरेक्शन, एंड बीच का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब 30 पिक्सल विल बी गिवन फॉर पैडिंग टॉप, 10 pixel will be in padding left and padding right, and 15 pixel will be padding bottom. Whenever you specify such kind of three values, okay. So when I reload this, देखो कैसा आ रहा है. सबसे ऊपर वाला मिल रहा है हम लोग को 30 पिक्सल, नीचे हाँ बीच वाला होता है लेफ्ट एंड राइट. सो लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल पैडिंग एंड पैडिंग राइट में 10 पिक्सल, फिर बॉटम में मिल रहा है 15 पिक्सल. ओके, दिस इज फॉर द थ्री वैल्यू सिंटेक्स. एंड एट लास्ट फोर वैल्यू सिंटेक्स देखो, 1 2 3 4, यू कैन सी द डायग्राम इजिली. इसमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला होता है टॉप के लिए, नेक्स्ट वाला राइट, फिर बॉटम, फिर तुम्हारा लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, इसमें लिखा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. सो अगर मैं चार वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा ना, देन यूजिंग दिस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आई विल बी एबल टू कंट्रोल ऑल द सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज फॉर द लेफ्ट. नॉट फर्स्ट वन इज नॉट लेफ्ट, फर्स्ट वन इज टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट. ठीक है, मतलब सबसे ऊपर में आएगा हम लोग का 30 पिक्सल, राइट साइड में आएगा 10 पिक्सल. आई कैन मेक इट राइट साइड 50 पिक्सल कर सकता हूँ, तो ज्यादा आ गया. बॉटम का 15 पिक्सल, राइट साइड का लेफ्ट साइड का 5 पिक्सल. ओके, व्हेन यू स्पेसिफाई फोर वैल्यूज, ईच इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी कंट्रोल लाइक दैट. थ्री वैल्यू देने से क्या होता है, बीच वाला द मिडिल वन बिकम्स द हॉरिजॉन्टल वैल्यू, फिर फर्स्ट वाला तो टॉप होता ही है. व्हेन यू स्पेसिफाई टू वैल्यूज, तो पहले होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टॉप एंड बॉटम, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन टॉप एंड बॉटम, फिर होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट. व्हेन यू स्पेसिफाई ओनली वन वैल्यू, सब पकड़ लेता है. इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो. दिस अप्लाइज फॉर बॉर्डर, दिस अप्लाइज फॉर बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग.
ठीक है। हाँ, ओके, बॉर्डर में नहीं होगा, बॉर्डर में इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, राइट। ये तो हृदय बुझी पैसा, दिस वन, दिस इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हेलो, समझ में आया है My ना? network is going to be bad because it's raining very heavily here. ओके ओके, इट्स ऑलरेडी रेनिंग इन गुवाहाटी, राइट? इधर अभी तक रेनिंग नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है थोड़ी देर में। इधर में तो बहुत जोर से दे रहा है भाई, बहुत जोर से। तो हम लोग का भी थोड़ी देर में देगा। है ना ऑडिबल? यस, यू आर इंडिया ऑडिबल का वहाँ पे विपुल। दे रहा है क्या? अभी हेलो रेन हेलो नहीं है। व्हाट्सएप। ओके, सो आई वाज आस्किंग इनकी ये बॉर्डर में काम नहीं करता है क्या? बॉर्डर में ना, कहीं पे था ना, डजंट वर्क विद दैट। ओके बिल्कुल, तेरा नेट भी खराब है रे। सो इट वर्क्स इन पैडिंग एंड या इट विल वर्क इन पैडिंग एंड दिस वन करेगा। मार्जिन यस यस, बॉर्डर में भी काम करेगा, मार्जिन। बट नॉट डायरेक्ट बॉर्डर में काम नहीं करेगा। हाँ, बॉर्डर विथ ऐसा बॉर्डर स्टाइल वो है, मैं बता रहा हूँ, उसमें काम करेगा। बट फॉर पेडिंग एंड मार्जिन, दिस दिस इज वेरी हैंडी। ओके, जैसे हम लोग को लगता है बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देना है पेडिंग, ओके ठीक है। जैसे मार्जिन मुझे देना है, लेफ्ट एंड राइट मुझे देना है, सॉरी अप एंड डाउन मुझे चाहिए 10, लेफ्ट एंड राइट मुझे चाहिए 30 पिक्सल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज वेरी कॉमन। सो इन मार्जिन एंड पेडिंग इट्स मोस्ट कॉमन। बॉर्डर कैसे काम करेगा, राइट? बॉर्डर में तो हम लोग को तीन उसका देना पड़ता है उसका यस, बॉर्डर का हम लोग अभी आ रहे हैं, यस पिक्सेल्स। करेक्ट। हाँ हाँ, यस। लेकिन मार्जिन और पेडिंग में ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से तुम ऐसे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कितना वैल्यू पास करते हो ना, वन वैल्यू सिंटेक्स, टू वैल्यू सिंटेक्स, ये आर्टिकल अच्छे से लिखा है इन लोग ने, इसको पढ़ लेना, मैंने लिंक भेजा है। तो बेस्ड ऑन दिस सिंटेक्स कौन सा डायरेक्शन में आएगा ऐसा तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी बॉर्डर का मैं बताता हूँ। हृदय, इट टू क्लियर, कैन वी मूव अहेड? हाँ, তো এই ওপৰতো বহুত কমন, হৰাইজন্টেল ডিৰেকশ্যন আৰু এনেকুৱা ভাৰ্টিকেল ডিৰেকশ্যন আমি দিব পাৰোঁ। আমি আগতে কি কৰি আছিলোঁ, মাৰ্জিন লেফ্ট দুটা দুটা দিব লগা হৈছিলে, बिकॉज वी डिड नॉट स्टडी दिस बिफोर। मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट देना है तो हम लोग ने ऐसा दिया था, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, ऐसा दिया था हम लोग ने। सो दिस इज अननेसेसरी, वी कैन सिंपली राइट 10 पिक्सल फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड फॉर लेफ्ट एंड राइट वी कैन राइट ऑटो, लाइक दिस, ऑटो। तो ये ऑटो कहाँ पे अप्लाई होगा, लेफ्ट एंड राइट अप्लाई होगा, because this is a shorthand property. Shorthand property is a property which allows you to set the values of multiple properties in one single property. Huh? Based on number of this values you pass, it will behave differently. तीन वैल्यू देने से बीच वाला हम लोग का लेफ्ट एंड राइट समझाता है, फर्स्ट वाला टॉप समझाता है, लास्ट वाला बॉटम। इसको थोड़ा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अभी बॉर्डर का बताता हूँ ना। बॉर्डर हम लोग अभी तक जो यूज कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो वन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, जैसे हम लोग को फर्स्ट देना पड़ता है बॉर्डर साइज, बॉर्डर विथ, फिर हम लोग को देना पड़ता है बॉर्डर स्टाइल, जैसे सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड। ओके, लास्ट में हम लोग को देना पड़ता है बॉर्डर का कलर, विच इज ब्लैक, ग्रीन, एनी कलर। तो ऐसा डॉटेड आ गया हम लोग का, बिकॉज वी यूज डॉटेड बॉर्डर स्टाइल। हम लोग सॉलिड यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर में हम लोग तीन वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। एक्चुअली व्हाट आई वाज टीचिंग यू वाज, आई वाज टीचिंग यू ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। दिस बॉर्डर इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग तीन वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला है बॉर्डर विथ। ओके, बॉर्डर विथ है 5 पिक्सल लाइक दिस, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पहला है बॉर्डर विथ, ठीक है। दूसरा वाला है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल हम लोग का हो सकता है सॉलिड, बॉर्डर स्टाइल हो सकता है डॉटेड। ओके, सॉलिड मैंने दे दिया। लास्ट वाला है बॉर्डर कलर। ओके, दिस वाज एक्चुअली थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट वी combined in one single property. Okay, this was actually three different properties. Border color green. तो when I run this, देखो border color green आ गया, border style हो गया हम लोग का solid, and the order does not matter, इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो। border width में 15 पिक्सल कर सकता हूँ, like this. Okay, so ये तीनों वैल्यूज को तुम लोग using one single property, using one single border property, it's a shorthand property, because using this property we can set the value of multiple related properties. इसको इसलिए इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें तीन वैल्यू हम लोग डायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं, बट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले तुम्हें देना पड़ेगा बॉर्डर विथ का वैल्यू, नेक्स्ट में देना पड़ेगा बॉर्डर स्टाइल, एंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का मल्टीपल वैल्यूज ऑलवेज स्पेसेस से सेपरेट होगा।
लास्ट में देना पड़ेगा बॉर्डर कलर लाइक दिस. सो सेम थिंग, हाँ, सेम थिंग हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा like this. So suppose you just want to change border width, हम लोग simply लिखेंगे border width like this. Whenever we just want to change border width or we just want to change border color using JavaScript, then we will simply say border color dot style dot border color like that. So you can control the individual values using these properties. So border was not actually main property. These were the actual properties, and border is actually shorthand property which combines the values of the other properties, the related properties. It's a shorthand property. इसका topic ही है shorthand property, this one. So make sure you read this documentation, very important. क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज तुम लोग जब आर्टिकल पढ़ोगे ना, सपोज फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड, जब वो सब आर्टिकल पढ़ोगे, देन देयर विल फाइंड दैट मोस्ट प्रॉपर्टीज दे आल्सो हैव अ शॉर्ट हैंड वर्जन रहता है, सो दैट यू कैन क्विकली राइट विदाउट रिपीटिंग. मतलब बार बार नहीं तो ऐसा 3 बार रिपीट कौन करेगा ना. वी विल सिंपली यूज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स इजियर टू राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन, कैसे वो फॉर्म हो रहा है. यस, विपुल का कुछ क्वेश्चन था. एनी क्वेश्चन विपुल? So, foreign property has this particular order that we that is required to be followed, right? To it Yes, to be working. correct. It is a particular order. But Similar, हाँ, जैसे but पेडिंग this में भी, CSS has no हाँ, order. You can place it randomly and it. yes, this the difference. जैसे बॉर्डर भी ऊपर And one नीचे more भी करने question से I have. होगा. हाँ, yes, What if I write border is 15 pixel and then again another 20 pixel, space 20 pixel and then close quote. like this. In the border color with, yeah, and then maybe green and then solid then green maybe. Yeah. But then Okay, we have two suppose, with properties like okay, border with like the this two way values, you are right? specifying the yeah. Okay, let Yes, us try. I yes. have not tried this. Let us try. It's working. It's working. Look, the first one is doing the top and bottom. Just like look here, whenever you specify now, here you can specify now the 4 directions, just like margin and padding, because it's an edge property. तो वो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा. अगर मैं फर्स्ट वैल्यू और दो सेकंड वैल्यू दूंगा ना, तो फर्स्ट वन विल रिप्रेजेंट द वर्टिकल डायरेक्शन. तो वर्टिकल डायरेक्शन में 5 पिक्सल आएगा. बेसिकली बॉर्डर टॉप विथ इस सेम एज बॉर्डर टॉप विथ बॉर्डर बॉटम विथ. ओके, इसमें भी ऐसा तुम लोग ऐड कर सकते हो. सिंपली हम लोग पहले बॉर्डर टॉप देते थे ना, बॉर्डर टॉप देने से सिर्फ टॉप का सारा होगा. बट हियर ऑल्सो इंडिविजुअल वंस कैन हैव लेफ्ट विथ बॉर्डर बॉटम विथ लाइक दिस. ओके, इंडिविजुअल वंस आर ऑल्सो पॉसिबल. सो हम लोग सिर्फ देते थे ना बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट. हम लोग बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट इसमें जो है, इसके बाद हम लोग बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट विथ, ऐसा भी हम लोग लगा सकते हैं. ओके, तो whenever you use these properties you can specify the individual values. Similarly बॉर्डर कलर में ग्रीन दिया और ब्लू दिया, तो लेफ्ट एंड राइट हम लोग का ब्लू हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम हम लोग का ग्रीन हो जाएगा. ठीक है. सो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दिस that it also works like this, just like padding and margin, because it's an edge property. एज प्रॉपर्टी मतलब दिस प्रॉपर्टी एक्स ऑन द एजेस. सिमिलरली बॉर्डर स्टाइल हम लोग का सॉलिड एंड डॉटेड मैंने दिया, तो डॉटेड हम लोग का होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और सॉलिड होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. जो पहला आता है वो वर्टिकल डायरेक्शन का. तो इफ आई स्पेसिफाई 3 वैल्यूज. हाँ, यस, But क्वेश्चन. in terms of that dotted, it is showing very big, right? The size is हाँ, huge because the compared to border the width for the horizontal six. direction is 20 pixel. If I make it 2 pixel, it'll show like Oh, this. okay, So yes, okay. let me make this dashed. अगर तुम लोग अभी 3 वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, 3 वैल्यू स्पेसिफाई करने से क्या होगा, तो फर्स्ट वैल्यू समझाएगा टॉप, सेकंड वैल्यू समझाएगा लेफ्ट एंड राइट, बेसिकली द हॉरिजॉन्टल, देन द थर्ड वैल्यू विल रिप्रेजेंट द बॉटम डायरेक्शन. सो बॉटम में हम लोग का वन मे बी 1 पिक्सल दे दिया मैंने. सो द बॉटम पिक्सल इज वेरी वेरी थिन, और आई कैन मेक इट 10 पिक्सल. सो यू कैन सी लाइक दिस, और 5 पिक्स नॉट 5, हाँ 10 पिक्सल ही रहने दो, और मे बी 8 पिक्सल थोड़ा ज्यादा. सो लाइक दिस. ये टॉप लेफ्ट एंड राइट हम लोग का सेम है, 12 पिक्सल है बॉर्डर विथ. ठीक है. और लास्ट वैल्यू देने से तो वही सेम हो गया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, border top width, border right width, border bottom width, like this. So just like padding and margin, you can specify the individual values, also individual directions whenever it's an edge property, whenever it's acting on the edge dimension. Similarly color भी हम लोग 4 specify कर सकते हैं, yellow, red, like this. ठीक है. So whenever you give 4 values, तो top, right, bottom, left, clockwise direction, हाँ, घड़ी जिस direction में turn होता है
उस डायरेक्शन में. So this is shorthand property. You can see you can combine these values. ठीक है? It's like that. So individual values में border width, border style, margin, padding, these all are shorthand properties. Even border width भी एक shorthand property है. It's a shorthand property for border top width, border bottom width. इसका shorthand property है, right? So we thought that this was the atomic value, but no, it is even one shorthand property for border top width, border left width, like that. फिर border तो general shorthand हो गया हम लोग का top, right इसका. ठीक है, इसमें हम लोग लेकिन चारों वैल्यू नहीं दे सकते. इसमें ना चार वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन बॉर्डर, हाँ हाँ, पॉसिबल नहीं है, सॉरी, इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बॉर्डर विथ बॉर्डर कलर वो सब में पॉसिबल है. हियर आल्सो इट्स गिवन. हाँ, बॉर्डर विथ, सी इट्स गिवन फॉर बॉर्डर विथ, सो इट आल्सो वर्क्स फॉर बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर. ओके, सो हियर इट्स गिवन है, नंबरिंग अच्छे से दिया तो है बोला यूजिंग सर, डायग्राम. हाँ, यस. if we are already specifying the shorthand property, then we can't use multiple of its features, right? Then we'll only be able to use the order that we can specify the things in. But if we are writing the code like border with color and style separately, then we can use that multiple properties of the same हाँ thing or हाँ हाँ, something like yes that. yes yes, correct. You can specify the multiple the directions, the values for the multiple directions. Yes. But when you use border, here you are already But specifying different types of yeah, values. Yes. So here it's not possible, yes, but still it's a it's already shorthand a property. shorthand property from Yeah. before itself. Yes, it is still a shorthand property. So a shorthand property is a property which allows you to set the CSS property for multiple other properties simultaneously. So yeah. So this is for padding margin. You can figure out by experimenting. So it's a shorthand property. You'll come across many shorthand properties which simplify your work, but you have to remember in which direction is starting. ना दिस वाज द लॉजिक फॉर द एजेस. एजेस का लॉजिक था कि एक वैल्यू देने से सब साइड होता है, फिर दो वैल्यू देने से पहले वर्टिकल होता है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का होता है, थ्री वैल्यूज देने से हम लोग का टॉप बीच वाला रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट एंड राइट वैल्यू, फिर बॉटम वाला रिप्रेजेंट करता है ये थर्ड वैल्यू. फोर वैल्यूज देने से ईच इंडिविजुअल डायरेक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑलवेज. नाउ व्हेनेवर इट्स अ कॉर्नर, हम लोग का टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है. कॉर्नर टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, top left, top right, bottom left. So it is also in clockwise direction, but it starts from top left. Remember, हाँ? तो इसमें भी चार वैल्यूज पॉसिबल है. लुक फॉर कॉर्नर्स ना, कॉर्नर्स के लिए एक ही हम लोग का प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस. दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी विच एक्ट्स इन कॉर्नर्स. सो लेट मी रिमूव दिस बॉर्डर स्टाइल डैश्ड. मैं सॉलिड कर देता हूँ सबको, तो ऑल साइड्स आर सॉलिड. Now I will use border radius, which is a corner property, not an edge property. Border radius. So using border radius, we can specify the direction for the circular, the roundedness, how much rounded value we need. Okay. So border radius, if I give just one value, 10 pixel, तो all sides हम लोग का specify होगा, because this is a shorthand property. It works for border top left radius, border top right radius. The individual values are border top left radius, 5 pixel, like this. Border so long, border top right radius. So you will get tired typing out so long. So instead of this, we can use the shorthand property. So using this, yes, you can specify the individual values, but it's unnecessary, right? Let me comment out. Yes, sometimes it may come in handy. So how would we go for the? We will specify top right, bottom left, something like that. If we are writing completely. Yes. So here it's a notation. The notation is there. What it means. So if you just specify one value, it means all the sides. When you specify two values, look. First one will specify the first diagonal. Okay, diagonal. The first diagonal. ये वन दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दिस वन एंड दिस वन. ओके, मतलब टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, द फर्स्ट डायगोनल इसको रिप्रेजेंट करेगा. सो इफ आई गिव जस्ट 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, तो 10 पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करेगा, द फर्स्ट डायगोनल, मतलब टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट. ओके, फर्स्ट डायगोनल. एंड द सेकंड वैल्यू विल रिप्रेजेंट द सेकंड डायगोनल, व्हिच इज दिस टू नंबर जो दिखाई दे रहा है इधर डायग्राम में, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा. ओके, व्हेन यू गिव टू वैल्यू सिंटैक्स, समटाइम्स आई आल्सो डोंट नो दिस प्रॉपर्ली. मैं we don't use this so much, border radius का ये दो तीन वैल्यू, because it's little bit confusing. और थ्री वैल्यूज देने से क्या बोल रहा है इसमें, देखो फर्स्ट वन ये हो गया, फिर टू वाला हो गया सेकंड डायगोनल का लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, फिर थ्री वाला हो गया ये, दिस थर्ड पॉइंट,
You can observe the diagram and follow it like this. ये थर्ड वाला स्पेसिफाई होगा, मतलब जस्ट लाइक हम लोग का एज प्रॉपर्टी जैसा था ना मार्जिन पेडिंग, तो थर्ड वाला देने से हम लोग का नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला लेफ्ट एंड राइट. हियर ऑल्सो सिंस इट स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्नर, हम लोग का इसका ऑपोजिट डायरेक्शन दो देने से स्पेसिफाई होता है, ठीक है. लेकिन तीन वैल्यू देने से हम लोग का बीच वाला, ये लेफ्ट एंड राइट मिडिल वाला डायगोनल, ये रिप्रेजेंट करता है. एंड व्हेन यू गिव फोर वैल्यूज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, एक एक स्पेसिफाई कर सकते हो, हाँ, चार वैल्यू देने से. So it's used in border radius like this. So instead of specifying four values, you can do like that. ये समझ में आया ना, this one? Yes. Yes. Okay, okay. हमको बात है हाँ, yes. that वो जिसमें तीन वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, हाँ. in there if I use a very मतलब absurd amount of value on the one parameter, maybe like perhaps maybe 3 is very big, like somewhere around 150 pixels, but rest are only 10, 10, 10, Uh, 10, 10 and 50. yeah, it's possible. But yeah, whatever element it is, it will look out of alignment. It will be out of alignment. Wait, suppose I give 115 pixel border radius, third value. You can see it will look like this, somewhat very strange, because the third value is totally different. It's very large or very small, right? Yes. Yes, you can use that. It will affect that particular dimension, that direction. How about Hi, how about about what? we using model with me or we something 1 minute. using an outline on the. Sorry, can you repeat? I did not hear properly. So in terms of right now we use on the border radius, right? So it just got a curve around observe different kind of curve Yes. in the Yeah. uh, element. But if Yes. we are using it in a what you said, maybe padding or even maybe in the margin or somewhere like that. Yeah, you can use. Suppose here in padding, you can see the first value. If I increase it to 130, so you'll see like this, a very huge padding at the top, or maybe on the left, whichever direction you put. Okay. Yeah, 150. Then on the right, Okay. a huge like this gap. You can use anywhere. So whenever you Okay. use shorthand properties, so from now be careful that you are using a shorthand property, and you can also specify multiple values like this. So we should simplify your task instead of writing individual values like margin left, margin top, which is very much annoying. So you can simply specify this shorthand notation if you know that. So you should use that. Mostly, mainly for specifying the vertical and horizontal direction in one single property. Now I have to tell you one more shorthand property, which is background. Okay, rest other properties will come later. बैकग्राउंड इज अ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी. शुरू शुरू में स्टार्टिंग में प्रशांत ने बोला था बैकग्राउंड में कलर नाम देने से भी क्यों हो रहा है. जैसे बैकग्राउंड इफ आई जस्ट गिव ग्रीन, तो सिंपली विदाउट गिविंग, मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं लिखा है, आई जस्ट गिव बैकग्राउंड, तो ग्रीन हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक बैकग्राउंड हाइफन कलर. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बैकग्राउंड इज अ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी. लुक, वी हैव बैकग्राउंड इमेज, वी स्टडीड दैट वी हैव बैकग्राउंड इमेज. बैकग्राउंड इमेज में तुम लोग यूआरएल दे सकते हो, राइट. दिस इज वन एग्जांपल. यूआरएल दे सकते हो इमेज का, some image, maybe https my image dot jpg, ठीक है, .com/test.jpg. This is some image URL. You can also give linear gradient, right? Background image में दो value possible है, linear hyphen gradient, right? Two top, two right, two bottom, याद है ना? So using linear gradient we can create smooth fade in fade out of colors, red, yellow. So background is a shortened property, और हम लोग का background color भी possible होता है, राइट. बैकग्राउंड कलर ग्रीन, रेड, हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है. तो बैकग्राउंड एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है हम लोग का बैकग्राउंड, यूजिंग विच यू कैन स्पेसिफाई either बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज, या फिर मे बी यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई बोथ ऑफ देम. आई एम नॉट श्योर बिकॉज वी डोंट यूज दिस. हाँ, बैकग्राउंड कलर और यूआरएल ऐसा देखो मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो. सो दिस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है ना, चार वैल्यू हम लोग का जो है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, दिस वैल्यूज विल कम लेटर. दिस फोर वैल्यूज हम लोग एक ही प्रॉपर्टी में दे सकते हैं यूजिंग जस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी. सो इफ यू जस्ट यूज बैकग्राउंड रेड, तो हम लोग का बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर समझाएगा. ओके, सिंपली वी कैन से बैकग्राउंड रेड, तो हम लोग का बैकग्राउंड कलर रेड होगा. ऑलराइट, 1 मिनट.
Why are you shouting, man? Please go outside. I'm doing the class. Do you want to do the class? Hey, come into the class. देखो सिंपली बैकग्राउंड देने से हम लोग का क्या होता है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाता है बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर बैकग्राउंड कलर. ओके, यू कैन either स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर और यू कैन ऑल्सो गिव बैकग्राउंड इमेज. देखो ओनली बैकग्राउंड कलर देने से क्या हो रहा है, रेड कलर आ रहा है. इफ आई ऑल्सो गिव लिनियर ग्रेडियंट, वो भी काम करेगा. देखो इज लुकिंग दिस फायर स्टाइल ना, फायर के जैसा स्टाइल आ रहा है बिकॉज लिनियर ग्रेडियंट टू बॉटम दिया है, टू लेफ्ट है, टू राइट, टू टॉप, या फिर डिग्री भी दे सकते हो. 30 DEG, तो 30 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री देने से क्या होगा, फुल्ली राइट डायरेक्शन. ओके, 30 डिग्री मतलब ऊपर से, घड़ी का जैसा 12 बजे से टर्न होता है ना क्लॉक, जस्ट लाइक दिस. सो लीनियर ग्रेडियंट भी दे सकते हो, बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल भी दे सकते हो यूजिंग दिस बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. ओके, सो बैकग्राउंड इज ऑल्सो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. हम लोग का फॉन्ट का भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी रहता है. फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, एक ही प्रॉपर्टी में दे सकते हो यूजिंग फॉन्ट. दिस वन वी डोंट यूज बिकॉज ये कंफ्यूजिंग है, तो याद रखना थोड़ा हार्ड है ये. But if you can remember, you can also use this. I don't use this, by the way. If you want to use, you can use this font shorthand property. Just check the CSS documentation ना, उसमें लिखा रहेगा. Main thing is you understand the concept. What is shorthand property? हाँ, कि ये एक property होता है जिसके साथ हम लोग multiple property का value specify कर सकते हैं. Just remember this, and then whenever you come across any new property या फिर font property, जो जो related property रहता है ना, font size, font style, background image, background color, उन सभी का ऑलमोस्ट ऑल द टाइम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी रहता ही है. लाइक मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, ये चारों को स्पेसिफाई करने के लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी रहेगा. बॉर्डर साइज, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, ये तीनों को के लिए एक रहेगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. सो फॉर रिलेटेड प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव वन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. ये तो रिमेंबर डेट. जैसे हम लोग ने फ्लेक्स बॉक्स डिस्कस किया था ना, उसके लिए भी फ्लेक्स बोल के एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी था. इट अलाउस यू टू स्पेसिफाई फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस इन वन प्रॉपर्टी. फ्लेक्स फ्लो बोल के भी है, फ्लेक्स फ्लो बोल के एक है, दिस वन फ्लेक्स फ्लो. इसमें हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप एक ही प्रॉपर्टी में दे सकते हैं. हाँ, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो बोल के एक है. फ्लेक्स फ्लो में फर्स्ट वैल्यू हम लोग को फ्लेक्स डायरेक्शन देना पड़ता है, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, जो भी देना चाहते हो. फिर सेकंड वैल्यू हम लोग को देना पड़ता है फ्लेक्स रैप. फ्लेक्स रैप भी एक था. इफ यू गिव रैप देन इफ द आइटम्स एक्सीड द विथ, तो नीचे आ जाता है. यू कैन गिव रैप, नो रैप, रैप रिवर्स, ऐसा. फ्लेक्स फ्लो इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड. ठीक है, देयर आर सम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज इसमें लिस्ट दिया है. Just open this documentation, the link which I have given. Here all the list of shorthand properties are given, which is of course not possible to explain one by one, but these important ones like margin, padding, these basic ones I have told you, and the rest concept is same. Whenever you will open, you will find that ये कौन सा वैल्यू को कंट्रोल करता है. सपोज हम लोग का शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी था बॉर्डर कलर, ये कौन सा शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगा. बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर, ऑब्वियसली वो सबको simply you have to click and open, because it's not possible to explain this all these things individually, but you got the main point. ठीक है, तो this is for short and properties. ये समझ में आ गया ना सबको, this one I'm marking this green. Okay, Yes. so last one, we have some time, we will learn now how to add icons to a web page. It's not very hard how to add icons to a web page. आइकन्स लगाने के लिए हम लोग का एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप इज एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी. ओके, सो आइकन्स को अगर हम लोग को खुद बनाना है, आइकन का एसवीजी इमेज बनाना है, तो बहुत काम होगा. सो वी डोंट वांट टू डू दैट. सिमिलरली बूटस्ट्रैप भी हम लोग का बहुत काम सिंप्लीफाई करता है, लाइक क्रिएटिंग ग्रिड सिस्टम. हम लोग को फ्लेक्स बॉक्स कम यूज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई. रेस्पॉन्सिव डिजाइन हेल्प करता है, बटन्स का डिजाइन रेडीमेड देता है. सो लाइक दिस लाइब्रेरी सिंप्लीफाइज आवर task a lot. So a library is a group of code, you can say, which performs a particular task or solves a particular problem. Okay, so it's a code written by others that we can integrate into our application. तो हम लोग का आइकन्स लगाने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी रहता है, जस्ट लाइक CSS हम लोग का फ्रेमवर्क जो है ना बूटस्ट्रैप, राइट, उसके जैसा हम लोग का लाइब्रेरी भी रहता है आइकन्स के लिए. अलग अलग होता है. तो मोस्ट कॉमनली यूज बहुत सारा है, बॉक्स आइकन्स, मटेरियल आइकन्स. ओके, मटेरियल आइकन्स, ऐसा बहुत सारा अलग अलग आइकन लाइब्रेरी होता है. मोस्ट पॉपुलर वन इज फॉन्ट ऑसम. ओके, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम बोल के मैंने लिखा है, FONT, फॉन्ट ऑसम.
तुम लोग को क्या करना है, फॉन्ट ऑसम इधर इधर डायरेक्टली नहीं जाना है, बिकॉज डायरेक्टली विल नॉट गेट द फ्री लिंक, ठीक है, फ्री लिंक नहीं मिलेगा. So I think it will show the paid link. So you just have to write font awesome CDN. ठीक है, CDN मतलब content delivery network. तुम लोग को पता चल जाएगा. You may think that you will forget now, but later you will be doing like this process all the time. You simply have to type font awesome CDN. ठीक है, then इसमें जा सकते हो cdnjs.com. Okay, make sure the website is cdnjs.com. तो उसमें क्लिक करना. Then you will find lot of different links like this, हाँ, various links, बहुत सारा लिंक मिलेगा. You have to copy all.min.css और all.css, जहाँ पे all कीवर्ड है ना, all.css, उसको कॉपी करना है. ओके, you to copy this. You can copy link tag, you can copy URL. ओके, मैं कॉपी लिंक टैग किया है मैंने. अभी इसको पेस्ट करना है. ठीक है, मैंने कॉपी प्रोसेस बता दिया है. फर्स्ट टू सर्च फॉन्ट और सम सीडीएन. इट विल बी कॉमन बिकॉज यू विल बी यूजिंग आइकन्स ऑल द टाइम ना, तो ये इजीली याद रह जाएगा करते करते. तो सिंपली यू हैव टू कम हियर, कॉपी दिस लिंक टैग, कम टू दिस सोर्स, हाँ, cdnjs.com. इधर से तुम लोग पेस्ट करना कॉपी करके लाइक दिस. सो ये जो लिंक है ना, मैंने पेस्ट कर दिया है. दिस इज अ लॉन्ग लिंक लाइक दिस. लिंक href all.min.css, जहां पे all.min.css है ना, उसको कॉपी करना है. तो आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड दिस इन आवर हेड टैग. जैसे हम लोग लिंक करते हैं ना, लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट href. एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगाते हैं हम लोग, लिंक टैग यूज करते हैं ना, rel स्टाइल शीट, फिर href इक्वल्स टू css का पाथ. सिमिलरली ये भी एक css फाइल ही है. ये आइकन्स जो है ना, ये भी एक css फाइल है. इसको हम लोग हम लोग को लिंक करना पड़ता है, जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप css लिंक करते हैं ना, या फिर हम लोग का एक्सटर्नल डॉट css फाइल होता है. सिमिलरली आइकन्स लगाने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च फॉन्ट ऑसम, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू ऐड आवर ओन आइकन्स, वी हैव टू यूज समवन्स एक्सटर्नल लाइब्रेरी, राइट. तो ऐसा लगाना पड़ता है. ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन है इसमें लगाने का प्रोसेस. ऑल डॉट सी एस एस में लगाना है, जहाँ पे ऑल डॉट मीन डॉट सी एस एस या फिर ऑल डॉट सी एस एस लिखा है, उसको हम लोग को लगाना है इनसाइड द हेड टैग, बिकॉज लिंक टैग तो हम लोग का हेड टैग के अंदर ही आता है. ओके, तो इधर तक तो क्लियर है ना, दिस वन द लिंकिंग प्रोसेस. लेट मी नो एनी How इशू. do the link rel and style sheet href that is should be typed by us, right? Like the CSS thing. यू कैन ऑल्सो टाइप बाय योरसेल्फ. लुक, इसमें दो या वो कॉपी, कॉपी करते वक्त वो आ जाएगा अपने आप. देखो ये दो बटन है. कॉपी यूआरएल करने से ना, सिंपली ये वाला कॉपी होता है. ओके, ओके. तो इसमें तुम लोग को तो लिखना ओके. पड़ेगा ऐसा, इस लिंक href में डालना पड़ेगा, और रियल स्टाइल शीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, नहीं तो ओके. सीएसएस नहीं आता है. तो ये दोनों लिखने से भी ओके. हो जाएगा. और ये सेकंड वाला जो है कॉपी लिंक टैग, इसको देने से डायरेक्टली लिंक टैग जो है ना कॉपी हो जाता है. वो लोग मतलब लिंक टैग को कॉपी करवा के हम लोग को दे देता है, सो दैट यू ओके. कैन सिंपली पेस्ट इट. ऐसे दो बटन है इसमें. ओके. cdnjs.com इधर आना. font awesome लाइब्रेरी नाम है. तो this is a nice library which provides you lot of different icons. some icons will not be available, हाँ, अगर कुछ कुछ आइकन अवेलेबल नहीं होता है तो दिखाई नहीं देगा. now how to add icons. icons लगाने के लिए you have to use I tag. okay, I tag is not icon tag. okay, I tag is italic tag, you know, italic tag or italic tag. I say italic. use italic. so ये टैग क्या करता है, हम लोग को स्लैंटिंग कर देता है ना. what happened. हाँ, you can see this italic this one. तो ये हम लोग का वर्ड को स्लैंट कर देता है. सो यू हैव टू यूज द सेम टैग, हाँ, सेम टैग लगाना है आइकन यूज करने के लिए, बट इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है. डोंट राइट एनीथिंग इनसाइड दिस. सिंपली क्रिएट वन आई टैग टू ऐड दिस आइकन यूजिंग फॉन्ट ऑसम. फॉन्ट ऑसम से आइकन लगाने के लिए सिंपली यूज एन आई टैग. आई मतलब आइकन बोल के भी समझ सकते हो, बट नॉट एक्जैक्टली आइकन, but font awesome uses the I tag. It recommends using the I tag. Then you have to add one class. Okay, you have to add one class. जैसे bootstrap लगाने से हम लोग क्या करते हैं, bootstrap का बहुत सारा क्लास रहता है ना, btn primary, bg primary, text center. तो similarly like ready-made class like mx3, my3. Here also in font awesome there are ready-made classes for icons. हाँ, icons के लिए ready-made classes है. क्लास लगाने के लिए तुम लोग को सिंपली लिखना है पहले FAS मतलब font awesome. First you have to give FAS. This is one class. As you know, we can add multiple class names to an element.
सिंपली स्पेस देके सेपरेट करना है. सो फर्स्ट क्लास हम लोग को ऑलवेज दो क्लास लगाना है. फर्स्ट क्लास विल ऑलवेज बी FAS एंड द सेकंड क्लास विल बी FA हाइफन द नेम ऑफ द आइकन. ओके, हम लोग का बहुत सारा आइकन है. इफ आई गिव FAS FA कैमरा, तो मुझे क्या मिलेगा? कैमरा आइकन मिल जाएगा. कैन यू सी कैमरा आइकन? दिस वन लाइक दिस. इसमें फॉन्ट आइकन का साइज कंट्रोल करने के लिए ना फॉन्ट साइज यूज करना पड़ेगा. फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल. ठीक है, आइकन का साइज तुम छोटा बड़ा कर सकते हो यूजिंग फॉन्ट साइज. ओके, सपोज कैमरा का साइज बहुत बड़ा करना है, आई कैन यूज इनलाइन स्टाइल, राइट? आई कैन ऑल्सो यूज इनलाइन स्टाइल. आई कैन से स्टाइल फॉन्ट साइज. आइकन का साइज लेकिन विथ हाइट से नहीं बढ़ेगा. यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर आइकन इज ऑल्सो फॉन्ट. इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ फॉन्ट. जस्ट लाइक ABCD फॉन्ट होता है ना, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ फॉन्ट. यू हैव टू यूज द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी. इफ आई यूज 50 पिक्सल तो आइकन का साइज 50 पिक्सल हो गया. ठीक है, इफ आई यूज 10 पिक्सल आइकन का साइज 10 पिक्सल हो गया. लाइक दिस यू कैन यूज फॉन्ट साइज. लेकिन आइकन लगाने के लिए सिंपली ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज FAS क्लास फर्स्ट. स्पेस देके FA हाइफन आइकन नेम. अभी आइकन नेम का लिस्ट बहुत सारा है. इफ आई सर्च फॉर फॉन्ट ऑसम आइकन लिस्ट, तो हम लोग का एक फॉन्ट ऑसम आइकन्स बोल के लिंक आएगा गूगल में. गूगल में ऑलवेज टॉप रिजल्ट ना रेलिवेंट रिजल्ट होता है. सबसे रेलिवेंट रिजल्ट ऑलवेज टॉप में आता है. देखो कितना सारा आइकन्स पॉसिबल है. एड्रेस बुक, लाइनोड, इधर सर्च कर सकते हो. सपोज फेसबुक, फेसबुक आइकन चाहिए ना. फेसबुक, इसका नाम देखो, इसमें नाम दिया है हाँ फेसबुक. तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जो भी नाम दिया है ना आइकन का, इंस्टेड ऑफ दिस कैमरा तुम्हें लिखना है फेसबुक. तो FAS हमेशा रहेगा, FA भी हमेशा रहेगा, हाइफन भी हमेशा रहेगा. इसके बाद बस आइकन का नेम इधर आएगा. ओके, दिस इज नॉट अवेलेबल. तो ये इस वर्जन में अवेलेबल नहीं है, फ्री वर्जन में. तो इफ आई यूज ओके, फेसबुक अवेलेबल नहीं है, हम लोग को फेसबुक का इमेज लगाना पड़ेगा. बट सपोज हम लोग को पेन आइकन चाहिए. ओके ओके, पेन अवेलेबल नहीं है तो पेंसिल है हाँ, पेंसिल. तो वी कैन राइट FAS FA पेंसिल लाइक दिस. देखो पेंसिल आइकन आ गया. बेसिकली एडिट आइकन वो सब में आ सकता है. सिमिलरली हम लोग का FAS FA क्लोज ऐसा रहेगा, क्लोज आइकन के लिए. ठीक है, फिर एरो आइकन बहुत सारा होता है. एरो लेफ्ट, एरो अप. ठीक है, तो हम लोग एरो एरो अप देते हैं. तो FAS FA एरो हाइफन अप लाइक दिस. इसमें जो भी नाम है ना एरो हाइफन अप, तो सिंपली इधर लगा देना है. एरो हाइफन अप होगा तो एरो हाइफन अप लाइक दिस. तो ये सारा आइकन्स मिल जाएगा. तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट एंड शो. FAS कैमरा लाइक दिस, कैमरा. फिर FAS होम बोल के भी है. ओके, ऐसा अलग अलग आइकन्स रहता है हम लोग. सिमिलरली बहुत इजी है, बस जहां जहां आइकन चाहिए ना यू सिंपली यूज आई क्लास. फिर आइकन का नेम यूज करना है. सपोज तुम्हें चाहिए रिलोड आइकन, सिंपली सर्च करना फॉन्ट ऑसम रिलोड आइकन, ऐसा गूगल में सर्च करना. तो इवन इफ द नेम इज नॉट एग्जैक्टली रिलोड, जो भी क्लोजेस्ट नेम है ना वो तुम्हें मिल जाएगा. रिलोड आइकन, रिलोड आइकन, हाँ आइकॉन रिफ्रेश. इसमें दिया है आइकॉन रिफ्रेश. सो लेट अस ट्राई FAS FA आइकन रिफ्रेश, आइकन हाइफन रिफ्रेश लाइक दिस. तो इट मे कम और मे नॉट कम डिपेंडिंग ऑन द वर्जन. एंड ओके, आइकन रिफ्रेश नहीं है. FA रिफ्रेश होगा शायद. हाँ FA रिफ्रेश है. तो रिलोड आइकन आ रहा है. तो व्हेन यू यूज दिस एप्लीकेशन, दिस ना फॉन्ट ऑसम आइकन्स, तो कॉमनली यूज आइकन तुम्हें पता चल जाएगा. क्योंकि तुम लोग स्ट्रगल करोगे ना. सपोज तुम लोग को चाहिए एक कैरोसेल में ना लेफ्ट आइकन रहता है, उसको बोलते हैं शेवरन लेफ्ट. ऐसा यूज कर करके पता चल जाएगा. ये शेवरन लेफ्ट ऐसा लेफ्ट एरो आइकन होता है. फिर शेवरन राइट होता है. ठीक है, फिर FA फाइल होता है. मे बी आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट विच विल सेव योर टाइम. और कुछ अगर देखना है तो इधर फॉन्ट ऑसम आइकन सर्च करके इधर तुम लोग सर्च कर सकते हो. इधर ना सारा आइकन्स नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स नॉट पेड वर्जन. हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं. दिस वन हाउ टू कनेक्ट. So you have to pay the premium version. When you pay the premium version, you will get all the icons, but it's unnecessary for most of the time. Suppose email में हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है? email दिखाना पड़ता है ना. So you can search for email. हाँ, envelope देखो envelope है, ब्रैकेट में email है. तो envelope अगर नहीं आता है तो email ट्राई करना. So if I use FAS FA envelope, तो what I will get? I'll get the email icon. देखो ये envelope icon आ गया. जैसे हम लोग को कभी दिखाना पड़ता है ना div element के अंदर. तो my email address is like this. तो दिस इज माई ईमेल एड्रेस. तो लाइक दिस ऐसा ईमेल एड्रेस में हम लोग आइकन दिखा देते हैं. सपोज मैंने BR दिया, बट यू कैन अवॉइड BR. हाँ, टेम्पोरेरी मैंने दिया है. ओके, वन मोर देना पड़ेगा बिकॉज इट वाज ऑनलाइन.
सो लाइक दिस, इसके बगल में मैंने हम लोग साइड में मतलब एक ईमेल आइकन लगा दिया। इसके बाद सपोज हम लोग क्या है, फोन आइकन, फोन देना है, एफ ए फोन बोल के लिखना पड़ेगा, फोन आइकन, बिकॉज आई नो दिस, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस, सो यू विल ऑल्सो कम टू नो व्हेनेवर यू स्टार्ट यूजिंग दिस। देखो ये फोन आइकन आ गया, राइट? लाइक दिस, आइकन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेबसाइट। होम आइकन, फाइल आइकन, रिफ्रेश आइकन, सो यू कैन सर्च हियर। जो जो प्रीमियम है नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तुम्हें पता ही चलेगा, बिकॉज आइकन्स विल नॉट शो अप। So just remember, you have to use this I class to add these icons. Any confusion, any question, is to पूछना. This is how you add icons. For the font awesome library, अलग अलग भी है, Google material icons भी है, but font awesome is more popular compared to others. Later we might also check those.